Dear students, today I am going to uh, give a lecture about introduction to patterns in bioinformatics, of course. And here we will see a regular expression or pattern or rule and fuzzy regular expression. Linear sequences of nitrogenous bases in DNA, RNA, and amino acids in proteins have no meaning till they express some important knowledge. Every residue in a linear sequence has definite position, and this results in formation of patterns. These patterns are the basis of comparative studies among different proteins or nucleic acids to find out the relationships. This knowledge is stored in databases. Some of the methods to find out knowledge expressed in protein sequences are given in following slides. So, first pattern is also known as a regular expression or pattern or rule. One single consensus expression obtained from conserved region of sequence alignment, which makes signature for a family membership, is known as regular expression, pattern और रूल. सो यहाँ पे फैमिली मेंबरशिप के लिए एक सिग्नेचर बनता है, एक डेफिनेट सीक्वेंस बनता है, पैटर्न बनता है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न और रूल कहलाता है. This consensus sequence is that pseudo sequence which gives conserved residue information in multiple sequence alignment. Consensus sequence हम पहले भी multiple sequence alignment के समय भी पढ़ चुके हैं. ये एक pseudo sequence है, मतलब real sequence नहीं है. Still it gives conserved residue information in a multiple sequence alignment. This is a multiple sequence alignment. आप देख सकते हैं पैटर्न क्या है. This stretch forms motif 1, this stretch forms motif 2, and this is known as gap और insertion. यानी कि इस 6th सीक्वेंस में ऐसा है कि ये मोटिफ मिल रहा है, ये मोटिफ मिल रहा है, लेकिन दो मोटिफ्स के बीच में ये कुछ इंसर्शंस हैं, तो नए अमीनो एसिड्स जुड़ गए हैं, या कहना चाहिए कि इनमें गैप है, इन सीक्वेंसेस में गैप है. तो इस तरह का पैटर्न सीक्वेंसेस में मिलता है. ये अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं और डीएनए सीक्वेंसेस में भी, डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस में भी पैटर्न्स या मोटिव्स मिलते हैं. Easiest way to recognize pattern is to find out single conserved region or motif and convert its sequence data into a pattern. Conserved region पता कर लीजिए सीक्वेंस में, फिर उसको पैटर्न में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए. कैसे कराएंगे वो अभी हम देखते हैं. Ultimately, most conserved or significant residue information is retained while the whole sequence is removed. फिर जहाँ जहाँ कंजर्व्ड रेजिड्यूज मिले हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, पैटर्न बन सकता है, उसको रोक लिया और बाकी के आगे पीछे के सीक्वेंस के पार्ट को हटा दिया इन अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. If 5 sequences are aligned and gaps are inserted according to need, we get few conserved regions, which are known as motifs. हमने पिछले स्लाइड में मोटिव्स देखे जिसमें गैप्स और इंसर्शन भी थे. रेगुलर पैटर्न्स आर मेड फ्रॉम दीज मोटिव्स. अब ये जो मोटिव्स बने उनमें से रेगुलर पैटर्न बनाया जाएगा, जिसका कि एग्जांपल हम नीचे देखते हैं. ये एक कंजर्व्ड रीजन है. इसमें ज़्यादातर आप देख सकते हैं कहाँ पे कंजर्व है. नंबर 2 पे, नंबर 4 पोजीशन पे, देन नंबर 10 पोजीशन पे, and R 12 पोजीशन, Q 15 पोजीशन. ये सारे
एक्सट्रीमली कंजर्व पोजीशंस है, इनके बीच बीच में कुछ कंजर्व्ड हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं. सो इनमें से हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस. इसका क्या मीनिंग है? On analyzing this alignment we get following result. क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है इस पैटर्न में से? पोजीशन 2, पोजीशन 4, पोजीशन 10, 12 and 15 are totally conserved. Then position 1, 11, 13 and 14. Only 2 residues are found that are shown in bracket. A मिल रहा है और S मिल रहा है. फिर 11 पोजीशन पे E और D मिल रहा है. ये देखिए ये दिखाया गया है यहाँ पे. फिर 13 पोजीशन पे Y और F मिल रहा है, तो ये ब्रैकेट में दिखाया गया है. और 14 पे दिस इज़ फॉर 14 एंड यहाँ पे भी ऐसा ही मिल रहा है, तो ये FY और 2 दिखाया गया. 2 से इसको एक्सप्रेस किया गया. ये एक फॉर्मूला जैसा बना रहे हैं. इसमें से पैटर्न का एक फॉर्मूला बन रहा है विच इज़ नोन एज रेगुलर एक्सप्रेशन. अब कौन सी पोजीशन बची? पोजीशन 3, जिसमें ILV 3 मिल रहे हैं, तो इन तीनों को दिखाया गया है. देन पोजीशन 5 to 8, 5, 6, 7, 8. Any residue may be present, so it is represented as into 4. यहाँ पे into 4 दिख रहा है. इन चारों पोजीशन पे कोई भी अमीनो एसिड एट रैंडम आ रहा है, तो उनको एट रैंडम दिखाया गया है. देन position 9, any residue may be present leaving proline or glycine, so it is written with different bracket PG. glycine and proline नहीं मिलेगा पोजीशन नंबर 9 पे. जितने अलाइन किए गए उसमें ऐसा पाया गया. देन ये इस तरह के ब्रैकेट्स दिखाए जा रहे हैं, straight brackets. Residues kept within this bracket are always found here. Then ये कर्ली नहीं है, ये convex shaped जो brackets है, residues kept within this bracket cannot be present here. यहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर होंगे इस तरह के ब्रैकेट में, और इस तरह के ब्रैकेट में वो नाम जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनके अंदर, वो रेजिड्यूज या वो अमीनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट होंगे. सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज मोस्ट यूजफुल व्हेन इट आइडेंटिफाइज वन स्पेसिफिक फैमिली बाय रिकग्नाइजिंग द मोस्ट कंजर्व्ड मोटिव. This motif may be 10 to 20 residue long and is involved in making peculiar core structure or has functional role. अब ये जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, या तो वो सारे सीक्वेंसेस में किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल पॉइंट पे मिलता है, या ये स्ट्रक्चर जो है वो कोई फंक्शनल रोल शो करता है. सो दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम these many 15 residue long multiple sequence alignment. Now sometimes even more smaller conserved regions are found in alignment, but they do not show specific protein families. जब smaller conserved regions मिलते हैं तो वो कोई family नहीं बना पाते हैं. क्या बनाते हैं आप देखिए, 1, 2, 3, 4 and 5 पोजीशन का जो है इसमें कंजर्व्ड कुछ मिल रहा है, बट वो फैमिली को नहीं सिग्निफाई करेगा. नाउ सच टाइप ऑफ सीक्वेंस फीचर्स आर फाउंड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, कंजर्व 3 to 4 residues cannot become a signature of one single family because they may be found in more than one family.
Instead of becoming signature of a family, they become a sign to show one particular function. तो फंक्शन शो कर देते हैं वो. सच पैटर्न्स आर नोन एज रूल टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ वन फैमिली. अब ये फंक्शनल साइट क्या है, आप ये एग्जाम्पल में देखिए. एस्पार्टिक एसिड, एस्पारेजीन, हाइड्रोक्सिलेशन साइट बना रहा है ये. और इसका रूल जो अगेन इसको जैसे पैटर्न एक बनाया था उसका रूल बना रहे हैं कि FY मिलेगा, C मिलेगा, C-X DN-X 4-FY -X C and C. ये इतने अमीनो एसिड लॉन्ग है और इससे पता चलेगा कि एक छोटी सी फंक्शनल साइट है. प्रोटीन काइनेज C फॉस्फोरिलेशन साइट जिसमें ST ज़रूर मिलेगा. देन फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे X कोई भी अमीनो एसिड आ सकता है. देन नेक्स्ट पोजीशन पे RK मिलेगा, R मिलेगा या K अमीनो एसिड मिलेगा. ये सिंगल अल्फ़ाबेट डिजिग्नेशंस हैं अमीनो एसिड्स के. तो इतनी छोटी सी साइट है जो कि प्रोटीन काइनेज C फॉस्फोरिलेशन साइट का काम करती है और ये रूल बनाती है. मतलब प्रोटीन काइनेज C फॉस्फोरिलेशन साइट पे यही पैटर्न मिलेगा तब वो अपना फंक्शन कर पाएगी. सो दिस इज अ रूल. Patterns and rules together make ProCyte database of proteins. तो अब जब ये चीज़ें मिलती हैं तो उनको स्टोर करना पड़ता है. तो किस में स्टोर करें, तो दिस इज स्टोर्ड इन ProCyte database. Now, next type of pattern is known as fuzzy regular expression. In regular expression, similarity among sequences is strictly followed. But when lesser degree of strictness is followed, it is known as tolerance or fuzziness. इससे पहले अब रेगुलर एक्सप्रेशन आपने देख लिया कि आइडेंटिटी है तो है, किसी आइडेंटिकल को सिमिलर नहीं कहा जाएगा वहाँ पे. लेकिन सिमिलरिटी के रूल्स भी होते हैं, सो उनको भी हम देखेंगे. और अगर सिमिलरिटी है तो सीक्वेंसेस को आपस में रिलेटेड मान लिया जाता है, विच इज़ मीन्स टॉलरेंस हो रही है और इट इज़ फजीनेस. तो फजी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, एवरी अमीनो एसिड बिलोंग्स टू अ सर्टेन ग्रुप and in a given sequence, if one amino acid of a group is exchanged with other amino acid of the same group, similarity of two or more sequences is accepted even in absence of identical amino acids at the same site or same position. एक पोजीशन पे आइडेंटिकल अमीनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स में जिनको आपस में कंपेयर किया सीक्वेंसेस में जिनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो भी अगर वो एक किसी फिजिको केमिकल ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो सीक्वेंसेस को सिमिलर मान लिया जाएगा. Amino acids are classified according to biochemical and physical properties, and mostly one amino acid belongs to more than one class. This is explained below in one letter quote. वेरी टाइनो अमीनो एसिड्स हैं, स्मॉल अमीनो एसिड्स हैं. तो वेरी टाइनो अमीनो एसिड्स आप देखेंगे इस लिस्ट में, स्मॉल अमीनो एसिड्स में भी हैं. फिर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स. तो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक के ग्रुप में भी हैं. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स, पॉजिटिव अमीनो एसिड्स, नेगेटिव अमीनो एसिड्स. ये सारी ग्रुपिंग्स की जा सकती हैं अमीनो एसिड्स की, और हर अमीनो एसिड ज़्यादातर एक से ज़्यादा ग्रुप में रखा जा सकता है. तो इस तरह के जब चेंजेस आपस में हो जाए एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में, तो उनको कभी कभी टॉलरेट किया जाता है और इस फजीनेस को की वजह से सीक्वेंसेस को सिमिलर माना जा सकता है. एंड देन
फजी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है. ये दिस फिगर शोज फिजिको-केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड्स. तो ये दूसरा मतलब डायग्रामेटिक व्यू है. ये लिस्ट पहले वाली लिस्ट ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसमें कम वैरायटी इंक्लूड की गई है क्लासिफिकेशन की. बट आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, ये एक से ज़्यादा ग्रुप को बिलोंग करते हैं. एरोमेटिक होते हुए भी पोलर भी है और ये वाला एरोमेटिक होते हुए भी बेसिक भी है और ये एरोमेटिक होते हुए भी हाइड्रोफोबिक है. तो इस तरीके से अगर इससे ये चेंज कर दिया जाए तो फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बदलें. स्ट्रक्चर में अगर कोई ख़ास बात नहीं बदलती है तो स्ट्रक्चर और फंक्शन कॉमन रहता है डिफरेंट सीक्वेंसेस में, तो वो एक फैमिली की प्रोटीन्स ही मान ली जाती हैं. नाउ वन एग्जांपल ऑफ फजी एक्सप्रेशन. अब आप देखिए अलाइनमेंट ये है और फजी रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से दिया गया है. अब कितनी प्रोटीन्स हो सकते हैं, कितने अमीनो एसिड्स हो सकते हैं इस पे? फर्स्ट पोजीशन के लिए ASGPT इतने अगर बदल जाएंगे आपस में, खाली यहाँ पे S चूँकि और अमीनो एसिड्स या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट खाली 4 सीक्वेंसेस का दिखाया है, मान लीजिए इसके अलावा और भी हो, तो कितने एक्सेप्टेड हैं इस पोजीशन पे? 5 अमीनो एसिड्स आर एक्सेप्टेड एंड देन even then sequences are considered similar. Then second position पे तो D ही होना चाहिए हर हाल में. Then again थर्ड पोजीशन पे IVL. देखिए यहाँ पे I और V का तो दिखाया गया है, लेकिन एग्जाम्पल में कम अमीनो एसिड सीक्वेंसेस लेने की वजह से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन इस पोजीशन पे इतने अमीनो एसिड्स का वेरिएशन पॉसिबल है. अगेन G इज प्रेजेंट हर हाल में. देन इनटू X कोई भी हो सकता है. 5 नेक्स्ट 5 में 5 पोजीशंस तक में कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है. देन C इज कांस्टेंट. दिस पोजीशन इज C इज कांस्टेंट. अगेन फिर D, E एंड Q इतने ढेर सारे. D, E ही यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन N और Q भी हो सकते हैं इस पर, क्योंकि दे ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप. समहाउ दीज आर रिलेटेड, तो उनको सिमिलर मान लिया जाएगा जब सीक्वेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे. देन R इज प्रेजेंट फॉर श्योर. देन अगेन इस पोजीशन पे FY दिखाया गया है इन 4 में, उसके अलावा W भी हो सकता है और उसके बाद भी यही हालत है, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे भी यही है, एंड देन फाइनली Q इज देयर फॉर सर्टेन. So this is the fuzzy regular expression for this alignment. Advantages क्या है? Fuzzy regular expression has been found in same sequence in which regular expression was searched. ऐसा भी हो सकता है कि regular expression जो कि strict rules के साथ है, उन्हीं sequences में fuzzy regular भी मिल जाएगा. It is clear that due to fuzziness, number of possible amino acids at each position is high. जैसा कि हमने देख लिया. ऑन फॉलोइंग दिस रूल समटाइम्स डिस्टेंट रिलेटिव्स ऑफ अ फैमिली इज डिस्कवर्ड. ऑब्वियसली जब हम सिमिलरिटी बढ़ा रहे हैं, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया थोड़ा कम कर रहे हैं कि आइडेंटिटी हो तभी माने, नहीं ऐसा नहीं करा हमने, तो डिस्टेंट रिलेटिव्स ऑफ अ फैमिली मे बी डिस्कवर्ड. और ये एक इम्पॉर्टेंस है फजीनेस को ऑब्जर्व करने की. बट यही डिसएडवांटेज भी है. ड्यू टू रूल ऑफ टॉलरेंस, नॉन सिमिलर सीक्वेंसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड सिमिलर. शॉर्टकमिंग हो गई इसकी. और डेटाबेस ब्लॉक्स एंड प्रिंट्स databases are made up of such similarity results. Emotive system uses fuzzy expression, but chances of getting false positive increases. एक सिस्टम emotive का जो सर्च करेगा डिफरेंट सीक्वेंसेस में, तो फजीनेस अगर वो मतलब टॉलरेंस ज़्यादा है तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, यानी कि बहुत से सीक्वेंसेस जो आपस में रिलेटेड नहीं हैं उनको भी ये सिस्टम जो है
रिलेटिव्स कह के ले आएगा एक साथ डिस्प्ले पे. देन वी नीड टू चूज और वी हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा भी हो सकता है. देन लेटर ऑन दैट शुड बी चेक्ड अगेन because the possibility of getting false positive. So this is all for today. I will tell you more about patterns in my next lecture. If you like my lecture, please like it, share it and subscribe it. Thank you.